Attention, attention, attention. Ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back in the Lead Code problem solving series. Here we have the fifth problem of Lead Code, which is stating as the longest palindromic substring, which is categorized on the medium level. So you know well, I will transform this medium category into the easiest category to get you understand easily. Okay, so all I need from you, your time from starting to end of this video and your attention, which is very very precious. So your attention is important on this problem. Okay, so इस problem को हम two different solutions से देखेंगे. First will be non optimized solution and second will be optimized solution. ओके सो हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्या आ रहा है, इसको स्मॉल से स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड करके उन सारे स्मॉल सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन अपना फाइनली हम लॉजिक बिल्ड करेंगे, सूडो कोड लिखेंगे एंड देन अपने कोड को परफॉर्म करेंगे ऑन दिस platform, the lead code. Okay, no problem. So first we'll read the problem carefully, what they are asking, what they are saying, what they are actually given into the problem. Okay, so problem में कह रहा है कि longest palindromic substring. Now here the word is substring and the second word is palindromic. Now you guys, if you don't know what is the palindrome, how to find the palindrome, and you guys don't know what is the substring, now how to find the substring of a string, so you guys are not able to solve this problem. So no problem, as I said, I will make this medium category to the easiest category. So I'll explain every small aspect, I will divide the problem into the small segments and I will explain every small segments to you all. So first segment is substring. I'll discuss कि substring क्या चीज होती है, सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं. सेकंड, आई विल डिस्कस व्हाट इज द पैलिंड्रोम एंड व्हाट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द पैलिंड्रोम. Then we'll just combine all these segments and find all the complete problem, which is stating as palindromes, longest palindromic substring problem, right? Okay. Okay, so first we'll discuss what is the substring. I'll let you understand what is the substring, how to find the substring. Then I'll let you understand what is the palindrome and how what formula we are going to use to find the palindrome. Okay, so no problem. आपको बस starting to end video में लगे रहना, stick रहना, and I'll explain every small thing in detail about this problem. Okay. So the main question is what is the substring here? So sub means part of anything and a string means part of a string. So part of a string is nothing but the substring. And when you are going to find the substring, you need to be the contiguous. Contiguous का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Suppose अगर मैं यहाँ पे एक string consider करूँ, string s is equals to something a, b, c and d. Okay, so ABCD इज माई स्ट्रिंग. ये कितने लेंथ की स्ट्रिंग है? 4 लेंथ की स्ट्रिंग है. अब इसमें जो सब स्ट्रिंग बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के सब स्ट्रिंग बनेंगे. सबसे पहला सब लेंथ का कौन सा होगा? 0 लेंथ का सब स्ट्रिंग जो कंसीडर किया जाता है. 0 लेंथ का सब स्ट्रिंग बनेगा, वो क्या होगा? एम्प्टी स्ट्रिंग होगा. ये ऑलवेज जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ये ऑलवेज किसी स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग माना जाता है. ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. वी अगर हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे कंसीडर किया जाता है. नाउ सिंगल लेंथ का सब स्ट्रिंग क्या होगा? सिंगल लेंथ का सब स्ट्रिंग होगा इंडिविजुअली ईच कैरेक्टर. हर कितने कैरेक्टर यहाँ पे? ए बी सी डी 4 कैरेक्टर हैं, तो चारों को इंडिविजुअली अगर हम लिख रहे हैं तो ये चारों अपने आप में क्या है? सब स्ट्रिंग है. मींस ए इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, बी इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग, सी इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड सो ऑन. ठीक है, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे सिंगल लेंथ में हम उसको इंडिविजुअली लिख लेंगे, तो सिंगल लेंथ के सब स्ट्रिंग कहलाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के. नाउ डबल लेंथ के 2 लेंथ के सब स्ट्रिंग कितने होंगे? यहाँ पे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फर्स्ट to second character. Now the contiguous word is came into the picture कि contiguous का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आपको contiguous रहना है. contiguous in the sense कि आपको यहाँ ऐसा नहीं कि आपने एक कैरेक्टर यहाँ से उठाया, एक कैरेक्टर यहाँ से उठाया और A और D बनाया और एक सब स्ट्रिंग बना दिया. This is not the substring. You can see it is the subsequences, but it is not the substring. So substring का मतलब है आपको contiguous रहना है. ठीक है, so contiguous in the sense अब यहाँ पे 2 लेंथ की substring क्या क्या बनेगी? A बनेगा और B बनेगा. Means I started from the first character to second character. Now second character to third character will be the second 2 length substring of this string BC. Okay, now
थर्ड कैरेक्टर से हमने फोर्थ कैरेक्टर पे गए हम सी एंड डी क्या होगा, थर्ड 3 लेंथ के सब स्ट्रिंग होंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ABCD के। ओके, नाउ अनदर लेंथ स्ट्रिंग बनेगा, 3 लेंथ के सब स्ट्रिंग बनेंगे। 3 लेंथ के सब स्ट्रिंग मतलब कि हम अगर कैरेक्टर यहाँ पे 3 कैरेक्टर हम उठाएंगे, कंटिन्यूअस उठाएंगे। सपोज हम यहाँ पे कैरेक्टर 1 से स्टार्ट किए और कैरेक्टर 3 तक गए, यानी कि ABC विल बी द first 3 length substring of this string is which is string is ABCD, right? Okay, now again we start from the second character and go to the last one. BCD is another string for this string. Okay, now the fourth one और कोई स्ट्रिंग बनेगा 3 लेंथ का नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सी से स्टार्ट करेंगे डी तक जाएंगे तो सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग बन रहा है ना, 2 ही लेंथ का बन रहा है, कोई तीसरा लेंथ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 लेंथ के 2 ही सब स्ट्रिंग बनेंगे इस स्ट्रिंग के। ओके, अब 4 लेंथ का यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, ये ऑलवेज जो कोई स्ट्रिंग होती है वो अपने आप के लिए क्या होती है, वो सब स्ट्रिंग होती है। तो ABCD इज ऑल्सो द सब स्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे हमें कितने स्ट्रिंग मिले, अगर हम इसको अवॉइड कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग को अवॉइड कर दें, तो इसमें कितने मिले, 4 मिले, इसमें कितने मिले, 3 मिले, इसमें कितने मिले, 2 मिले, इसमें कितने मिले, 1 मिले। कितना हुआ टोटल हमारे पास, 4 + 3 + 2 मींस 9 एंड 10, कितना हुआ, 10 हुआ। मींस किसी भी स्ट्रिंग में कितने सब स्ट्रिंग पॉसिबल है, n into n + 1 डिवाइडेड बाई 2। मींस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो 4 into 4 + 1 which is 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 which is 10। ठीक, सो दिस वे, यानी कि 10 सब स्ट्रिंग होंगे। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास कितने सब स्ट्रिंग बने, 10, 4 3 2 1, 10 सब स्ट्रिंग बने। तो किसी स्ट्रिंग के हमारे पास किसी स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, कितने सब स्ट्रिंग होते हैं, किस किस लेंथ के सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द पैलिंड्रोम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी इस प्रॉब्लम के हर एक स्मॉल एस्पेक्ट को समझना जरूरी होगा। सो हियर द अनदर एस्पेक्ट व्हिच इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, दोनों बार रीड करने पे सेम स्ट्रिंग आ रही है तो उसको हम क्या कह देते हैं, पैलिंड्रोम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग कंसीडर करें, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ABA, हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर किया। अब इस स्ट्रिंग को अगर हमने फॉरवर्ड रीड किया मतलब पहले A आया, देन B आया, देन A आया, है ना। तो ये हमें एक स्ट्रिंग मिल गई। नाउ अगर इस स्ट्रिंग को हमने बैकवर्ड रीड किया सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A आया, देन B आया, देन A आया, ये अनदर स्ट्रिंग मिल गई हमें बैकवर्ड रीड करने पे। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीड करने पे दोनों स्ट्रिंग अगर इक्वल आ रही हैं, दोनों स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग रीड हो रही हैं, तो उस स्ट्रिंग को हम कह देते हैं पैलिंड्रोम। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए क्या है, पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम तो बेसिक था, आई नो यू गाइज नो अबाउट द पैलिंड्रोम, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पैलिंड्रोम में ये समझना है कि इवन लेंथ का पैलिंड्रोम क्या होता है, ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम क्या होता है, और ऑड लेंथ को पैलिंड्रोम कैसे फाइंड करते हैं, इवन लेंथ के पैलिंड्रोम को कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस आएंगे, है ना। इस प्रॉब्लम में दोनों केसेस मिलेंगे, किसी केस में हमें ऑड लेंथ मिलेगा एंड किसी स्ट्रिंग में हमें इवन लेंथ के पैलिंड्रोम मिलेंगे, तो इन दोनों केस को हमें हैंडल करना होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऑड लेंथ एंड इवन लेंथ का मतलब क्या हुआ, सपोज अगर मैं, let me remove all these things and let me take a fresh string here. Suppose एक string हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ सबसे पहले odd palindrome and here will be the even palindrome. Okay, so odd palindrome means अगर मैं यहाँ पे एक string लूँ, string CIVIC, सिरिक नेम का हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग NOON, नून हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया। अब यहाँ पे देखो, ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम क्यों होगा, क्योंकि हम इसको फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें, दोनों बार में ये क्या आ रहा है, इक्वल स्ट्रिंग दे रहा है। एंड इसमें ऑड लेंथ पैलिंड्रोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर एंड 5 कंसीडर एज द ऑड, सो इट इज नोन एज द ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। सेम वे में अगर हम नून को देखेंगे, फॉरवर्ड रीड करें, बैकवर्ड रीड करें, दोनों बार में हमें सेम स्ट्रिंग मिलेगी, और यहाँ इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, सो इट इज कंसीडर्ड एज द इवन लेंथ पैलिंड्रोम। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम जो ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम है, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हम क्या कर लें, हम अगर यहाँ पे एक सेंटर कैरेक्टर हम यहाँ पे फाइंड कर लें, ठीक है, सेंटर कैरेक्टर फाइंड कर लें। अब हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास लेफ्ट में जो स्ट्रिंग्स हैं, लेफ्ट में जो कैरेक्टर है और जो राइट में कैरेक्टर्स है, वो दोनों इक्वल है क्या, मींस हम कंपैरिजन करें फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर, इक्वल है क्या, अगर इक्वल है देन हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड फर्स्ट कैरेक्टर टू सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ये इक्वल है क्या, इक्वल है।
तो हाँ, आगे आएंगे, आगे हमें क्या मिला, सेंटर मिला। जैसे हमें सेंटर मिला वैसे हम समझ जाएंगे, और बाकी जितने भी इक्वल हैं हम समझ जाएंगे कि ये क्या हमारे लिए पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर हम बात इवन लेंथ की पैलिंड्रोम को फाइंड करने की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें कोई सेंटर नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेंटर नहीं मिला, यहाँ पे हमें दो सेंटर मिल रहे हैं, दो मिडिल एलिमेंट, दो मिडिल कैरेक्टर मिल रहे हैं, ओ मिल रहे हैं। यहाँ पे मीन्स आप अगर फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर एंड सेकंड कैरेक्टर टू सेकंड फर्स्ट कैरेक्टर टू सेकंड लास्ट कैरेक्टर को आप कंपेयर करके नहीं बता सकते हो कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मिडिल है, इस दो मिडिल एलिमेंट को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो हम देखेंगे प्रॉब्लम में, इन दोनों प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। जब हम कोड करेंगे तो हम देखेंगे ऑड पैलिंड्रोम हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑड पैलिंड्रोम फाइंड करना तो इजी है, मैंने एक सेंटर ले लिया एंड देन फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से डिफाइन कर लिया, एंड सेकंड फर्स्ट से सेकंड लास्ट कैरेक्टर को हमने इक्वल कर लिया। अगर उन्हें इक्वल है तो ये क्या हमारे लिए पैलिंड्रोम है। सेम वे, लेकिन इवन पैलिंड्रोम के लिए हम नहीं कर पाएंगे। इवन पैलिंड्रोम के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आई डिस्कस इन द कोड देयर। सो पैलिंड्रोम समझ में आ गया। पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, अगर आपने फॉरवर्ड रीड किया एंड बैकवर्ड रीड किया एंड दोनों टाइम में अगर जो इक्वल स्ट्रिंग आ रही है, इक्वल स्ट्रिंग रीड हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम दो टाइप के पैलिंड्रोम को हमें हैंडल करना है इस प्रॉब्लम में। पहला क्या है, ऑड पैलिंड्रोम, देन दूसरा क्या हमारे पास इवन पैलिंड्रोम। ये दोनों पैलिंड्रोम को हमें हैंडल करना है, नो प्रॉब्लम। सो होप सो पैलिंड्रोम समझ में आया हो। तो हमने बेसिक चीजें सब कुछ समझ ली। यहाँ पे पैलिंड्रोम क्या है, सबस्ट्रिंग क्या है। नाउ इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अगर हम टाइटल पढ़ेंगे तो बोल रहा है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, मतलब आपको एक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। सबस्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। और जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, इसमें जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है उसको आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके रखा है, उस एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझते हैं, देन हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग, सपोज एक स्ट्रिंग इन्होंने दे रखी है BA ये स्ट्रिंग उन्होंने दे रखी है। अब इसका मुझे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग फाइंड करना, तो सबसे पहले हमें कॉमन थॉट प्रोसेस क्या है कि हमें स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो सब स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो सिंगल लेंथ का सब स्ट्रिंग क्या बनेगा, जितने कैरेक्टर हैं इंडिविजुअली वो क्या है उस स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर 1 B A and D is the single length substring of this string. Now what will be the double length, two length substring of this string? Start करेंगे from the first character to the second character BA. Now second character to third character AB. Now third character to fourth character which is BA, and BA is already present. We are not going to written here right here. So again fourth character, the fifth character which is AD. So ये हमारा क्या बन गया, two length का substring बन गया। ठीक है, now what will be the three length substring? First से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन कंटिन्यूअस होके हम थर्ड कैरेक्टर दे जाएंगे। सो रिमेंबर कंटिन्यूअस होना, आपको सबस्ट्रिंग बनाना है तो कंटिन्यूअस होना है। तो सिंपली यहाँ पे B A B फर्स्ट सबस्ट्रिंग विल बी हियर। नाउ अगेन व्हाट विल बी द सेकंड सबस्ट्रिंग ऑफ द थ्री लेंथ? सो स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड टू थर्ड फोर्थ वन। सो A B A now will be the what will be the third one? B A D will be the third one. So BAD will be the third one of the three length substring. Now what will be the four length substring? Four length substring will be BA. Now again any substring, yeah, will be the ABAD will be the another four length substring. So this is the four length substring. What will be the five length substring? A string itself is the five length substring. Every string is the substring of itself. So ये क्या 5 लेंथ का। नाउ अब ये कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है पैलिंड्रोमिक, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। हमने सबस्ट्रिंग फाइंड कर लिया, अब इसमें पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कौन सा होगा। सिंगल लेंथ के जितने भी कैरेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम है, तो यहाँ पे हमें सिंगल लेंथ के 3 पैलिंड्रोम मिले। ठीक है, सिंगल लेंथ के 3 पैलिंड्रोम मिले। नाउ यहाँ पे क्या है, सेकंड में कोई पैलिंड्रोम है, BA कोई पैलिंड्रोम नहीं है, AB कोई पैलिंड्रोम नहीं है, AD कोई पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, सेकंड लेंथ में हमें कोई पैलिंड्रोम नहीं मिला। यहाँ पे हमें एक पैलिंड्रोम मिला, यहाँ पे BA हम उसे मार्क कर देते हैं, ABA मार्क कर देते हैं। क्या BAD पैलिंड्रोम है? नहीं, क्रॉस कर देते हैं। नाउ फोर्थ लेंथ में कोई पैलिंड्रोम है? नहीं है। इसमें कोई पैलिंड्रोम है? नहीं है। फिफ्थ लेंथ में कोई पैलिंड्रोम है? नहीं है। मतलब कि हमारे पास सिंगल लेंथ के 3 पैलिंड्रोम मिले और 3 लेंथ के 2 पैलिंड्रोम मिले। अब ये पूछ रहे हैं कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। अब तक हमने सिर्फ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड किया, अब इसमें से लॉन्गेस्ट, अब इसमें कितने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मिले? 1 2 3 4 5 पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मिले। अब इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट हमारे पास क्या है, BA है और ABA है, विच इज 3 लेंथ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। मतलब कि आप इसको रिटर्न करो, BAB रिटर्न करो या तो ABA रिटर्न करो। यही उन्होंने यहाँ पे कहा, या तो आप BAB रिटर्न करो या तो आप ABA रिटर्न करो, इज ऑल्सो वैलिड आंसर। ये आपका वैलिड प्रॉपर आंसर होगा।
ठीक है, यही इस प्रॉब्लम में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पहले हमें सबस्ट्रिंग देखना है, देन उसके बाद हमें पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग देखना है, देन उसके बाद हमें क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग क्या होगा वो हमें रिटर्न करना है। सिंपल एग्जांपल, तो अब इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ऑड लेंथ का पैलिंड्रोमिक है। इसमें ऑड लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बनाए, बी ए बी, यहाँ पे 3 कैरेक्टर है ना, 3 कैरेक्टर है, विच विल बी कंसीडर्ड एज द ऑड लेंथ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। अब क्या होगा कि हमें इवन लेंथ के पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मिले, उसको भी हमें हैंडल करना होगा। जैसे एग्जांपल 2 में इन्होंने दे रखा है बीबी, यहाँ पे बीबी क्या है, इवन लेंथ का पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने आपको पैलिंड्रोम जब आपको बता रहा था तो उसमें आपको 2 तरीके के पैलिंड्रोम बताया, एक इवन लेंथ का पैलिंड्रोमिक एंड ऑड लेंथ का पैलिंड्रोमिक। हम उसको डिस्कस करेंगे इन द कोड कि कैसे मुझे फाइंड करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस व्हाट विल बी द पॉसिबल लॉजिक। हम 2 तरीके के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन हमारे लिए होगा जो कॉमन थॉट प्रोसेस है, एक बंदा आता है उसे लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उस कॉमन थॉट प्रोसेस क्या होगा, उस सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस कहां जाएगा, वो उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम देखेंगे, जो मीडियम लेवल का सॉल्यूशन होगा उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। ओके, यहाँ पे हम सूडो कोड लेंगे, जो कॉमन थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे जो नॉन ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ओवरऑल हम जब कोड लिखेंगे तो इसको ट्रेस करते चलेंगे सूडो कोड को। ठीक है, सिंपली सो क्या कह रहे हैं, मैं इस सूडो कोड में जो कॉमन थॉट प्रोसेस है ये क्या कह रहा है, सपोज इस एक स्ट्रिंग हमें हमारे पास है बी ए बी ए डी। अब इसका हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक पॉइंटर हम लेंगे जो स्टार्ट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर से, इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा एंड देन उसके बाद जस्ट इसके बाद से हम एक और पॉइंटर उठाएंगे, एक पॉइंटर उठाएंगे जे, जो इस पूरे स्ट्रिंग को रीड करेगा और एक सब स्ट्रिंग बनाता चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें जो है कंटिग्यूअस रहना पड़ेगा, हम स्किप नहीं कर सकते, किसी भी सबस्ट्रिंग को बनाने के लिए हमें कंटिग्यूअस रहना पड़ता है। सपोज अगर हमने बी से स्टार्ट किया तो हमें सबस्ट्रिंग बनाना है तो इसके आगे कंटिग्यूअस रहना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड सेकंड पॉइंटर जे हियर। सपोज अगर हमारे पास आई यहाँ पे है तो हमारा जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जे हमारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए के बाद हमें कंटिग्यूअस रहना, पीछे नहीं जाना, कंटिग्यूअस रहना, बी ए डी ऐसा समथिंग। ये हमारे, इसलिए हमें 2 पॉइंटर की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। सो हमने एक पॉइंटर लिया, सपोज आई पे जीरो इंडेक्स से हमने आई पॉइंटर उठाया और एक हमने जे इंडेक्स जे पॉइंटर उठाया जो आई के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक इसका सूडो को लेंगे, हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया, आई पॉइंटर को हमने सिंपली 0 से स्टार्ट किया और इसको हम लेके गए जब तक कि हमारा ये जो एस डॉट लेंथ, मतलब ये पूरा हम इसको रीड ना कर लें। ठीक है, तो एस डॉट लेंथ तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, सिंपली एन आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। ठीक, अब इसके जस्ट अंदर ही, इस लूप के जस्ट अंदर एक और हम यहाँ पे लूप बनाएंगे फॉर, एक और पॉइंटर उठाएंगे जे, और जे को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे i+1, जहां पे भी आई रहेगा उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे अपने जे पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे एंड इसको भी हम सेम केस में एस डॉट लेंथ तक लेके जाएंगे, LENGTH, एस डॉट लेंथ तक लेके जाएंगे और जे को हमने प्लस प्लस कर दिया। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारा आई कैरेक्टर हमारा यहाँ पे है, आई कैरेक्टर हमारे यहाँ पे, जे कैरेक्टर हमारे यहाँ पे, मतलब कि हम यहाँ से एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे, मतलब कि एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे, सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर, सब स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे आई और कॉमा जे पास कर देंगे। मतलब ith वैल्यू और jth वैल्यू के बीच में जो भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बन रही है वो सब स्ट्रिंग उठाएंगे और उठा के हम भेज देंगे किसके पास, पैलिंड्रोम फंक्शन के पास। मतलब कि हमारे पास एक पैलिंड्रोम फंक्शन होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये सब स्ट्रिंग। अगर वो पैलिंड्रोम है तो वो उठा के डाल देगा किसके पास, एक लॉन्गेस्ट नाम का एक हम वेरिएबल यहाँ पे बना लेंगे सिंपली। सो स्ट्रिंग नाम का, एक स्ट्रिंग टाइप का हम एक लॉन्गेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहे थे जिसमें हमने इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया है, कुछ नहीं डाला, एम्प्टी डाल दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लूप के अंदर आएंगे, हर इटरेशन पे, हर ith इटरेशन पे हम एक सब स्ट्रिंग बनाएंगे। सो सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे जिसमें, जिसको स्टार्टिंग इंडेक्स आई दे देंगे और एंडिंग इंडेक्स हम यहाँ पे जे दे देंगे। और ये क्या रिटर्न करेगा कि सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि एक स्ट्रिंग टाइप होगा, जिसको हम इसे एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो सब स्ट्रिंग, सब नाम के एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सब वैल्यू को उठा के हम भेजेंगे किसके पास, पैलिंड्रोम फंक्शन के पास। मतलब देयर शुड बी इज पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन होना चाहिए, पैलिंड्रोम, जो क्या चेक करेगा कि जो ये सब है, जो ये सब है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, जो ये सब स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपल सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का, पैल नेम का हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे इफ पैल डॉट लेंथ, मतलब जो हमारे पास सब स्ट्रिंग उठ के आ रही है अगर वो पैलिंड्रोम है
तो यहाँ से पैलिंड्रोम है तो यहाँ से उठ के क्या भेजेगा, ये सब स्ट्रिंग भेजेगा। अब हम चेक करेंगे जो ये सब स्ट्रिंग आ रही है यहाँ से, ये जो सब स्ट्रिंग आ रही है इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ शुड बी ग्रेटर देन, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन इस लॉन्गेस्ट के, जो हमें ट्रैकर, हमने यहाँ पे ट्रैकर रखा है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट हमने यहाँ पे लॉन्गेस्ट टाइप का एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया ट्रैक करने के लिए, तो लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ, अगर इस लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ में, लेंथ से जो सब स्ट्रिंग हमें मिली है इससे ग्रेटर है, तो हम इस लॉन्गेस्ट में क्या डाल देंगे, लॉन्गेस्ट में डाल देंगे इस पैल को, मीन्स जो पैलिंड्रोम हमें उठ के आया, जो सब स्ट्रिंग उठ के आया हमारा पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग उठ के आया, इसको हम इसमें डाल देंगे सिंपली। इतना काम करते हैं हमें, और फिर उसके बाद हमें एंड में रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिटर्न लॉन्गेस्ट, रिटर्न लॉन्गेस्ट। दिस इज आवर द सूडो कोड। अब इसको हमें अपने कोड में रिटर्न करना है, कोड में लिखते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं इसको कोड में लिखता हूँ। अब अपने फर्स्ट सोल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द कोड एंड अपने सूडो कोड को ट्रेस करते चलेंगे इस कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपने इसे सॉल्व करना है। होपफुली सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो होपफुली आप अपने लैंग्वेज में अपने इस सूडो कोड को कन्वर्ट कर सकते होगे। सो जस्ट कन्वर्ट द कोड एंड मैं जावा में से सॉल्व करूंगा। सो जावा में से सॉल्व करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम यहाँ पे सब स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रिंग है एस है, इसका हम यहाँ पे सिंपली एक लेंथ निकाल लेते हैं सिंपली। सो इंट लेंथ इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ मेथड को कॉल कर देंगे सिंपली, एंड यहाँ पे लेंथ में इस स्ट्रिंग की लेंथ उठ के चली आएगी। एंड देन उसके बाद हमें ट्रैक करना है लॉन्गेस्ट सब पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग को ट्रैक करना है, तो हमने उसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट नेम से हमने यहाँ पे एक वेरिएबल उठा लिया लॉन्गेस्ट, ठीक है। और इसमें हमने बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी इसमें, ठीक है। तो ओके गॉट इट। सो अब हमें एक पॉइंटर लेना है जो इस स्ट्रिंग के, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के 0th कैरेक्टर से स्टार्ट करे, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करे एंड पूरे स्ट्रिंग को रीड करे एंड ओवरऑल साथ ही साथ एक सब स्ट्रिंग बनाता चले। तो सब स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें एक पॉइंटर और लेना पड़ेगा, एक और लूप चलाना पड़ेगा, लूप के अंदर लूप। सो फॉर इंट एंड इसको हम आई की जगह स्टार्ट रख लेते हैं, स्टार्ट, तो सब स्ट्रिंग बनाने में इजी होगा। सो इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड स्टार्ट is less than, should be less than should be less than length, जो हमने लेंथ निकाली यहाँ पे स्टार्टिंग में, लेंथ should be less than length and start प्लस एंड इसके अंदर आते हैं जस्ट इसके बाद हम एक और जे पॉइंटर हमने जो लिया था सेम वे में एंड नेम से एक पॉइंटर लेते हैं, एंड नेम का एक पॉइंटर लेते हैं। ये स्टार्ट एंड एंड हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें जो सब स्ट्रिंग बनाएंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे तो वो मीनिंगफुल लगेगा हमें थोड़ा सा। सो एंड इज इक्वल्स टू स्टार्ट +1 से हम इसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट +1 एंड देन एंड को हम सेम वे में लेंथ तक लेके जाएंगे, एंड शुड बी एंड इक्वल टू लेंथ। सो एंड शुड बी इक्वल टू लेंथ हियर, सो डोंट फॉरगेट टू पुट हियर द लेंथ। सो या लेंथ एंड देन हियर एंड प्लस सिंपल। ओके फाइन। ओके सो अब हर एक इटरेशन पे, हर ith इटरेशन पे हमें क्या करना है, एक यहाँ से सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, जो इस स्ट्रिंग के लिए एक सब स्ट्रिंग निकालना है, एक स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का, एस स्ट्रिंग का एक सब स्ट्रिंग निकालना। सो एस डॉट सब स्ट्रिंग मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और सब स्ट्रिंग वी नो दैट कि दो वेरिएबल लेता है, जो दो आर्गुमेंट लेता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स लेता है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट दे देंगे एंड एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे एंड दे देंगे सिंपली। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर द स्टार्ट एंड एंड टू मेक इट द मीनिंगफुल। सो अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसको हम एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सिंपली। सो स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग से एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, इसमें स्टोर कर देते हैं सिंपली, ठीक है, सिंपल। ओके सेव कर लेते हैं ना। ओके अगेन हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास ये जो सब स्ट्रिंग मिली है ना, सब स्ट्रिंग हमने उठाई, अब इसको हमें चेक करने के लिए भेजना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, पैलिंड्रोम का एक फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस दोनों लूप के बाहर आते हैं एंड इस मेथड के बाहर आते हैं और एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक एंड बूलियन टाइप का, जो बूलियन रिटर्न करे, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे, इज पैलिंड्रोम और नॉट, इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम इस पैलिंड्रोम। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करते हैं सिंपली, इस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, सिंपल, ठीक है। ओके अब यहाँ से भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग उठ के इस पैलिंड्रोम के पास आना चाहिए। तो हम यहाँ काम करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे
एंड साथ ही साथ हमें ये भी काम करना है कि जो हमें पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग को चेक करें कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। साथ ही साथ हमें ये काम करना है कि अगर वो पैलिंड्रोम है और इस लॉन्गेस्ट लेंथ से ज्यादा है उसकी लेंथ, तो हमें उसको इस लॉन्गेस्ट में उस सब स्ट्रिंग को डालना है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले में ये चेक करना है, तो हम ये चेक करेंगे सिंपली। सो इज पैलिंड्रोम एंड इसके अंदर हम इस सब स्ट्रिंग को पास कर देंगे। हमने यहाँ पे बनाई है सब स्ट्रिंग्स, ये पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये सब स्ट्रिंग जो ये सब स्ट्रिंग्स है, जो इसमें सब स्ट्रिंग उठ के हर इटरेशन पे आएगा, ये सब स्ट्रिंग उठ के जाएगा इस पैलिंड्रोम के पास एंड ये चेक करेगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, और यहाँ से बूलियन वैल्यू रिटर्न हो गया, यानी कि ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होके आएगा। अगर ये पैलिंड्रोम है तो यहाँ ट्रू रिटर्न होके आएगा। एंड साथ ही साथ एक और कंडीशन हमें यहाँ पे रखनी है एंड ऑपरेटर लगा के, कि जो हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है, जो हमारे पास सब स्ट्रिंग्स है, इसकी लेंथ इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट, जो हमारे पास ट्रैकर है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग के लिए जो हमारे पास ट्रैकर है, उसकी लेंथ से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो ही हम इस लूप के अंदर आएंगे। इस लूप के अंदर आके लॉन्गेस्ट में उठा के हम इस करंट सब स्ट्रिंग करंट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को हम उठा के डाल देंगे सब स्ट्रिंग। सिंपल सिंपल, इट्स सो सिंपल है ना। ओके, नाउ ये काम हुआ है। अब अगर हमारे पास, यानी कि अब एट द एंड जब ये दोनों लूप चल जाएंगे, ये दोनों लूप चल जाएंगे, तो एट द एंड लॉन्गेस्ट में हमारे पास आ जाएगा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग आ जाएगा। तो हम रिटर्न कर देंगे सिंपली यहाँ पे लॉन्गेस्ट which is a string type and we know that कि it is returning a string type here. Okay, अब मेन काम हमारे पास है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसको फाइंड करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये फाइंड करना हमें। तो सिंपली इस वाले फंक्शन के अंदर आते हैं। अब पैलिंड्रोम के लिए जो भी हमारे पास मेथड्स हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं सिंपली। ठीक है, तो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। सपोज हमारे पास BA ये हमारे पास है स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है। सपोज इसमें से हमें ये वाले सब स्ट्रिंग उठ के आ गया ABA, ये वाला सब स्ट्रिंग उठ के हमारे पास इस सब स्ट्रिंग में उठ के आ गया, इस सब स्ट्रिंग में उठ के आ गया। तो ABA उठ के आ गया। अब ये ABA उठ के हमने भेज दिया किसके पास, पैलिंड्रोम के पास, कि चेक करो कि भैया कि ये पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये AB उठ के आ गया, सिंपली S में उठ के ABA आ गया। ठीक है, अब नाउ इसको मुझे चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर हम लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर हम राइट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो लेफ्ट को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और राइट को हम क्या करेंगे, पीछे लेंगे। ठीक है, राइट को हम क्या करेंगे, पीछे लेंगे। मतलब कि हमें इसे दो पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो की तरह है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंटर हम ले रहे हैं। जो एक पॉइंटर हमारा स्टार्टिंग से इटरेट होगा, एक पॉइंटर हमारा लेफ्ट से राइट से इटरेट होगा, एंडिंग से। अब लेफ्ट स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर तो लास्ट कैरेक्टर, देन सेकंड फर्स्ट कैरेक्टर तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर, हम इस तरीके से इसे मैच कराते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक और केस हम लेते हैं, तो हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग आ गई AA, ये भी क्या है हमारे पास पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। अभी किसी स्ट्रिंग का होगा, अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो हम यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, एंड यहाँ पे हमने राइट पॉइंटर लिया। ठीक है, राइट पॉइंटर लिया। ठीक है, अब लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, अब लेफ्ट पॉइंटर को राइट पॉइंटर से कंपेयर किया, अब इक्वल हुआ। तो जैसे इक्वल होगा वैसे हम लेफ्ट को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अब लेफ्ट पॉइंटर हमारा यहाँ आ जाएगा एंड राइट पॉइंटर हमारा माइनस होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हमने कंपेयर किया, AA इक्वल है क्या, तो इक्वल है। फिर हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ सेंटर में आ गया। जैसे हमें सेंटर मिला वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, पैलिंड्रोम रिटर्न हो रहा है। ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग आ रही है, ये क्या है, पैलिंड्रोम है। इसको आप अपने कोड में कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सिंपली अपने कोड में आ जाते हैं, सिंपली यहाँ पे एंड कोड में लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दो पॉइंटर लेना, तो इंट लेफ्ट एक पॉइंटर लिया जिसको हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 0th इंडेक्स, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स हमने स्टार्ट कर दिया सिंपली। और एक पॉइंटर हमने लिया इंट राइट नेम का एक पॉइंटर लिया जिसको हमने एस डॉट, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ रही है, एस डॉट लेंथ मेथड -1, डॉट लेंथ मेथड -1 मींस एंडिंग इंडेक्स पे हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंडिंग इंडेक्स यहाँ -1 इसलिए किया, क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रिंग है एक्चुअली में कैर एरे के फॉर्म में स्टोर होगा अगर, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। सो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें -1 करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस AABA, इसमें लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 लेंथ होगी। यानी कि जो ये लास्ट वाला कैरेक्टर है ये हमारा 4th इंडेक्स पे होगा। क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सो वी हैव टेकन हियर द -1 एज वेल। ओके, सो
बेसिक थिंग, ये बेसिक चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ ये 2 पॉइंटर हमने ले लिए, अब हमने क्या करना है, इसको हमें ट्रेस करना है। सो लेफ्ट, तब तक हमें एक लूप चलानी है, एक लूप लेंगे, तब तक हमें लूप चलानी है जब तक कि लेफ्ट इज नॉट लेस देन राइट। जैसे ही लेफ्ट इज लेस देन राइट होगा, मतलब कि ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैं, एक टाइम के बाद ये लेफ्ट हमारा उठ के इधर आ जाएगा, राइट हमारा उठ के इधर आ जाएगा, मतलब कि दोनों इक्वल हो जाएंगे या दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। उस केस में हमें इस लूप से बाहर आ जाना है, उस केस में हमें इस लूप से बाहर आ जाना है। तो इस लूप के जब तक ये केस पॉसिबल नहीं हो रहा है, जब तक ये केस ट्रू नहीं हो रहा, तब तक हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर to the last character, first second character to the last second character, first third character to the third last character, इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। सो as dot simply char at left and is not equal to, we'll give here not equal to, why we'll give here not equal to, I'll tell you, just char at right, अगर ये है, मतलब कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है, लेफ्ट में कितना आ गया उठ के हमारे पास, ए उठ के आ गया, और राइट में कितना उठ के आ गया, ए उठ के आ गया। सपोज इस राइट में क्या है, बी है, सपोज इमेजिन बी है, मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी, मींस ये क्या पैलिंड्रोमिक नहीं है, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो इस केस में जब ये इक्वल नहीं हो, तो उस केस में हम इस लूप इस कंडीशन के बाहर आएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे एंड राइट को माइनस माइनस करेंगे। मतलब हम अगला सब स्ट्रिंग देखेंगे, अगला सब स्ट्रिंग देखेंगे क्या ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं इस केस में, राइट। अगर ये इक्वल नहीं है, तो सिंपली हमने इस लूप के अंदर आना है और रिटर्न कर देना है फॉल्स, सिंपल। जैसे हमें ये मिला है कि जो ये फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, वैसे क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू बी, मींस ये पैलिंड्रोम नहीं है। जो आपने सब स्ट्रिंग भेजी है वो पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग नहीं है। मींस हम क्या करें, फर्स्ट कैरेक्टर उठा रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर से उठा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड कैरेक्टर उठा रहे हैं, लास्ट सेकंड कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फर्स्ट कैरेक्टर उठा रहे हैं, थर्ड लास्ट कैरेक्टर से मैच करा रहे हैं। इफ दे आर मैचिंग, दे आर इन द पैलिंड्रोम, सिंपल। तो ये है फॉर्मूला। एंड देन उसके बाद अगर ये सब कुछ ट्रू रहा, ये सब कुछ अगर ये फॉल्स रहा, अगर ये ट्रू रहा, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू द लास्ट राइट कैरेक्टर, लेफ्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द राइट कैरेक्टर, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना। अदरवाइज लेफ्ट को प्लस प्लस करके राइट को माइनस माइनस करके हम इसका पूरा इटरेट करेंगे एट द एंड। मतलब कि अगर हमारे साथ जो बूलियन वैल्यू, जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये फॉल्स नहीं हो रही है, तो इन द एंड हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न सिंपली ट्रू रिटर्न कर देना। सिंपल हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, सिंपल जो हमने सूडो कोड में डिस्कस किया था सब कुछ हमने सेम किया है, कुछ भी इधर उधर। ये हमारा क्या है, कॉमन थॉट प्रोसेस है, हमारा कॉमन थॉट प्रोसेस है कि अगर एक सिंपल बंदा आ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो क्या सोचेगा, पहले मुझे पैलिंड्रोम निकाल लेना है, और हर पैलिंड्रोम में हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे एक पैलिंड्रोम फंक्शन के पास कि अगर वो पैलिंड्रोम है तो भैया उसे रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। अगर वो पैलिंड्रोम है एंड जो हमारे पास सब स्ट्रिंग आ रही है पैलिंड्रोम से उठ के, है ना, वो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ से बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट में हम सब स्ट्रिंग डाल देंगे और रिटर्न लास्ट में हम लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर देंगे, सिंपल एज इट इज, राइट। एक छोटी सी हमारे पास मिस्टेक है, जो हमने कॉल किया मेथड को इस पैलिंड्रोम, ये हमारा पैलिंड्रोम मेथड होगा, इसे आप करेक्ट कर लेना। अगर आपने जिस कॉपी पेस्ट किया सो तो अगेन हम रन करेंगे यहाँ पे, एंड लेट्स सी इफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड और नॉट फॉर दिस केस। सो टेस्ट केस इज पास, so test cases is passed, right? Right. Case 1, case 2 pass. Now we'll submit here. We'll see. You don't need to submit क्योंकि मैंने इसे पहले सॉल्व कर लिया, आपको सबमिट नहीं करना। टेस्ट केसेस ये पास हो गए। ये ऑर्डर ऑफ n क्यूब देगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n क्यूब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, जो कि वैलिड नहीं है, अभी है, सही नहीं है। आप देखोगे बीट ओनली 5.01%, ओनली 5.01% यूजर्स को हमने बीट किया। Means this is not the optimized solution. Now we'll see the optimized solution. इस कोड को, जो हमारे पास कोड है, इसको हम और किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम सारी चीजें फिर से डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले सूडो कोड देखेंगे इस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का, देन उसके बाद हम उसको ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, देन कोड लिखेंगे अपना अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम सूडो कोड देखेंगे इस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का। इस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में हम मेथड यूज करेंगे एक्सपैंड अराउंड द सेंटर। एक्सपैंड अराउंड द सेंटर का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए ए बी ए ए,
ठीक है। मींस अगर हमारे पास अगर यहाँ पे आई एक सेंटर, एक आई क्या है, एक सेंटर के, एक पॉइंटर, हम एक पॉइंटर लेंगे जो सेंटर की तरफ वर्क करेगा। अब उस सेंटर के हिसाब से हम उसे एक्सपेंड करें। फॉर एग्जांपल अगर आई हमारा बी पर है तो यहाँ लेफ्ट में हम इसे एक्सपेंड करेंगे, बी राइट में इसे एक्सपेंड करेंगे, देख कर चेक करेंगे क्या ये पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है कि नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, उसको सूडो कोड की तरह की हेल्प से देखेंगे एंड ओवरऑल फिर उसके बाद हम एक कोड को, अपने सूडो कोड को अपने कोड में ट्रैक करते हुए उसको कोड को लिखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। अब हम एक आई पॉइंटर लेंगे जो हम यहाँ 0th इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हर आई जो वैल्यू होगी एज अ सेंटर काम करेगा, एज अ सेंटर काम करेगा और उस आई के हिसाब से हम एक्सपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई को उठाया, ए मिला हमें, अब इस ए को हमें भेज देना है, इस पूरे स्ट्रिंग को हमें भेज देना है किसके पास, एक मेथड के पास। एक मेथड हम क्रिएट करेंगे, एक्सपैंड अराउंड सेंटर। जैसे कि हमने इस पैलिंड्रोम क्रिएट किया था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपैंड अराउंड सेंटर क्रिएट करेंगे। ये एक्चुअली एक्सपैंड अराउंड सेंटर जो ये मेथड होगा ये दो तरीके के पैलिंड्रोम को हैंडल करेगा। दो तरीके के पैलिंड्रोम हमने स्टार्टिंग में देखे थे, एक इवन पैलिंड्रोम और एक ऑड पैलिंड्रोम। अभी किस तरीके से हैंडल करेगा, आई विल शो यू, जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो एक्सपैंड अराउंड सेंटर के पास ये जाएगा और ये उसी हिसाब से एक्सपैंड होगा। किसके हिसाब से, इस आई के हिसाब से, इस आई के हिसाब से। ये आई अपने आप में क्या है, एक सेंटर हम कंसीडर करेंगे। तो सूडो कोड लिखते हैं तो अभी चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो सपोज अगर हमने क्या किया, एक लूप लिखा, एक लूप लिया। अब इस लूप में हमने एक पॉइंटर लिया, आई इक्वल्स टू हमने 0 से स्टार्ट किया और आई को हम लेके गए इस लेंथ से, इस स्ट्रिंग के लेंथ तक, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसके लेंथ तक ले गए। सो हम इसके लेंथ तक इसको हमने ट्रैवर्स किया और आई को हमने हर स्टेप पे इटरेट कर प्लस कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंक्रीमेंट दे दिया। अब हर आयत पे हमने क्या बोला, हर आयत पे ये एज अ सेंटर काम करेगा और इसको हमें सेंड कर देना है एक्सपेंड अराउंड सेंटर मेथड के पास। मतलब कि हम यहाँ पे कहीं एक मेथड बना देंगे एक्सपेंड अराउंड सेंटर। अब वो क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा। वो कैसे एक्सपेंड करेगा हम कोड में इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर आयत पे हमने वैल्यू उठाई और हमने यहाँ पे इसको भेज दिया एक्सपैंड अराउंड सेंटर। एक्सपेंड अराउंड सेंटर मेथड के पास हमने भेज दिया और इसमें हमने पास कर दिया स्ट्रिंग, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी स्ट्रिंग पास कर दी एंड यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी, सेंटर पास कर दिया। अब यहाँ पे सेंटर जो पास करोगे, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब आप सेंटर पास करोगे तो हम जानते हैं हमारे पास दो तरीके के पैलिंड्रोम होंगे। एक होगा हमारे जो इवन लेंथ का पैलिंड्रोम होगा, एक होगा जो हमारे पास ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम होगा। अब जो हमारे पास ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम हमारे पास ए बी ए ए एग्जांपल आया। इसमें कितने ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर है। अब इसमें एक सेंटर है, एक सेंटर है, बी क्या है, एक सेंटर है। अब इसके लेफ्ट में हमने अगर कंपेयर किया, ए फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर किया, इक्वल है। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट से सेकंड लार्जेस्ट को सेकंड लास्ट को कंपेयर किया, इक्वल है। तो हमने इसे कह दिया ये क्या है, हमारे लिए पैलिंड्रोम है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया एक सेंटर मिलेगा। तो जितने भी ऑड लेंथ के सबस्ट्रिंग मिले, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी ए, यहाँ पे सेंटर क्या मिला, बी मिला यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए सी ए, यहाँ पे सेंटर क्या मिला, सी मिला यहाँ पे। अब ये ऑड लेंथ के लिए हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें एक सेंटर मिल गया। लेकिन इवन लेंथ के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो ऑड लेंथ के लिए ये जो हुआ है, ये ऑड लेंथ के लिए हमने सेंटर, दोनों सेंटर हमने आई आई पास कर दिया, दोनों सेंटर लेफ्ट एंड राइट हमने दोनों आई आई पास कर दिया। और ये किसके लिए बन गया, हमारा ऑड पैलिंड्रोम के लिए बन गया, ऑड पैलिंड्रोम के लिए बन गया। लेकिन जो इवन है, इवन में आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया नून, अब यहाँ पे हमारे पास दो सेंटर बन रहे हैं, डबल दो सेंटर बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ए ए बी बी ए ए। नाउ अब हमारे पास दो सेंटर बन रहे हैं, बी बी, ये दो सेंटर बन रहे हैं। तो हम ये अब हम यहाँ करेंगे, मतलब जो ith वैल्यू है उसको भेजेंगे, ith वैल्यू उसको पास करेंगे और एक i+1 वाली वैल्यू को पास करेंगे। मींस यहाँ नून को अगर देखें तो ith वैल्यू को पास करेंगे और इसके ith के जस्ट बाद वाले वैल्यू को भी पास करेंगे, एज अ सेंटर पास करेंगे। मतलब दो सेंटर के अराउंड हमारा जो ये सब स्ट्रिंग है वो एक्सपैंड होगा। तो ये ऑड पैलिंड्रोम के लिए हो गया। एक सेम हम बनाएंगे इवन पैलिंड्रोम के लिए, बनाएंगे इवन पैलिंड्रोम के बनाएंगे और यहाँ पे एक्सपैंड अराउंड सेंटर और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, यहाँ पे आई पास करेंगे और यहाँ पे i+1 पास करेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम यहाँ पे i+1 करें, यहाँ क्यों i+1 करें, क्योंकि हमारे पास दो सेंटर के अराउंड मुझे एक्सपेंड करना है। अब ये एक्सपेंड अराउंड सेंटर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न देगा। तो यहाँ पे इसको हमने ऑड पैलिंड्रोम और इवन पैलिंड्रोम को हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये काम कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इफ s dot odd palindrome odd dot palindrome dot length हम चेक करेंगे इज ग्रेटर देन, हम एक ट्रैकर लेंगे लॉन्गेस्ट, जैसे हमने पिछली बार लिया था लॉन्गेस्ट, हम एक ट्रैकर लेंगे लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ। सिंपली यहाँ पे एक हम लॉन्गेस्ट ले लेंगे, लॉन्गेस्ट, जिसमें हमने एक
एम्प्टी स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया, सिंपल। ठीक, अगर इक्वल है तो हम ऑड लॉन्गेस्ट में हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट में उठाएंगे ऑड पैलिंड्रोम की जो सब स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, उठा के हमने लॉन्गेस्ट में डाल दी। सेम वे में फिर से हम एक बार इफ कंडीशन लगाएंगे और सेम वे में हम इवन के लिए करेंगे सेम कंडीशन, लॉन्गेस्ट डॉट लेंथ हम चेक करेंगे, अगर इक्वल ग्रेटर है इवन का तो हम लॉन्गेस्ट में उठा के इवन वाला डाल देंगे, सिंपल। एंड एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न लॉन्गेस्ट। ये हमारा क्या है, सूडो कोड है। आई नो थोड़ा सा मेसी हो गया, आई डोंट हैव द गुड हैंड राइटिंग, बट मैं इसको कोड में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सो डोंट वरी। सो लेट्स गो टू द कोड की इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन का हम कोड कैसे लिखेंगे सिंपली, ठीक है। मैं बड़े सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, ओके। तो अपने इस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का कोड है, यहाँ पे लिखेंगे, अपने लीड कोड के कोड सेक्शन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने ट्रैकर के लिए एक स्ट्रिंग लेनी है। सो स्ट्रिंग सिंपली स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट नेम का हमने एक स्ट्रिंग लिया है, जिसमें हमने इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेस केसेस है, बेस केसेस को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं सिंपली। सो इफ एस डॉट लेंथ, इफ एस डॉट लेंथ मतलब कि इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है इज लेस देन 1 है, लेस देन 1, और एस इज इक्वल टू नल, इसमें स्ट्रिंग में कुछ स्टोर नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल जो है रिटर्न एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, सिंपल। एंड इफ एक और कंडीशन लेंगे, इफ स्ट्रिंग एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन में अगर स्ट्रिंग की लेंथ मतलब एक ही कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में, तो उस केस में हम रिटर्न एस, सेम स्ट्रिंग को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ठीक है, जो स्ट्रिंग हमारे पास पास हुई थी उसी स्ट्रिंग को हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल। ओके, नाउ कम टू द सुडो कोड हियर। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि हमें एक लॉन्गेस्ट नाम का एक ट्रैकर लेना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हमने इनिशियली क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया है। ठीक है, अब हमें एक लूप लेना पड़ेगा, एक पॉइंट, उस लूप के अंदर हम एक पॉइंटर लेंगे, इंट आई पॉइंटर लेंगे, जिसको हम स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको हम उठा के ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास इस एस डॉट लेंथ तक हम ना पहुंच जाए, एस डॉट लेंथ तक हम ना पहुंच जाए, सिंपल। एंड हर इटरेशन के बाद इस आयत को हमने इंक्रीमेंट कर देना है, सिंपल। अब इस लूप के अंदर हम आएंगे, हम सिंपल। अब इसके अंदर हमें सब स्ट्रिंग मिलेगी, उस सब स्ट्रिंग के लिए हमें एक एक्सपेंड अराउंड सेंटर नाम का एक मेथड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो सिंपली पब्लिक स्ट्रिंग एक्सपेंड अराउंड मेथड क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, पहले स्ट्रिंग str एंड सिंपल एस ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस, एंड हियर इंट एक लेफ्ट वेरिएबल लेंगे, लेफ्ट एक्सपेंड करने के लिए, और एक राइट वेरिएबल लेंगे, इंट राइट, सिंपल। अब इसके अंदर का जो फंक्शनैलिटी है उसको हम देखेंगे, पहले हम यहाँ इसकी फंक्शनैलिटी, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, इतना कर दिया। नाउ वी नो दैट कि जैसे हमारे पास सब स्ट्रिंग मिलेगी, अब उसे हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो हमें दो केसेस चेक करने पड़ेंगे, एक हमें देखना पड़ेगा क्या वो पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, तो वो ऑड लेंथ की पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है या इवन लेंथ की पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे एक्सपैंड अराउंड सेंटर, एक्सपेंड अराउंड सेंटर। इसमें हम स्ट्रिंग एस को पास कर देंगे एंड सेंटर पास करेंगे आई, क्यों, क्योंकि ये ऑड लेंथ के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो ऑड लेंथ के इसमें हम वेरिएबल नेम दे देते हैं ऑड पैलिंड्रोम, एंड इसको एज अ ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का, सो इसको हम एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल नेम देते हैं स्ट्रिंग, इट शुड बी ऑड पैलिंड्रोम। ठीक, हमने पे सेंटर पास कर दिया आई, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑड लेंथ की अगर हमारे पास सब स्ट्रिंग मिल रही है तो वो क्या है, ऑलरेडी उसके पास एक सेंटर है, सो हमने आई पास कर दिया। आई वर्क एज अ सेंटर, आई डिस्कस्ड यू, आई वर्क एज अ सेंटर। अब अगर जैसे हमारे पास ये सब स्ट्रिंग, अब यहाँ एक्सपेंड सेंटर, हमारे पास जो ये सब स्ट्रिंग मिलेगी, ये सब स्ट्रिंग उठ के हमारे पास इस एक्सपेंड अराउंड सेंटर के पास जाएगा। अब एक्सपेंड अराउंड सेंटर यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग रिटर्न किया। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न आ जाएगी, एज अ सब स्ट्रिंग रिटर्न आ जाएगी, अगर वो पैलिंड्रोम है तो, ठीक, राइट। नाउ एक्सपेंड अराउंड सेंटर में की फंक्शनलिटी ऐसे कैसे काम कर रही है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ एक्सपेंड अराउंड सेंटर में आएंगे और एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक लूप लेंगे और एक्सपेंड करेंगे, पहले लेफ्ट को लेंगे, लेफ्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तब तक हम लेफ्ट को तब तक हम एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट साइड। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर सिंपली, तक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हमारे पास ए बी ए। सपोज हमारा आई पॉइंटर हमारा यहाँ पे है। अब हम लेफ्ट वाले को तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि लेफ्ट जीरो ना हो जाए, राइट वाले को तब तक हम एक्सपेंड करेंगे तब तक राइट वाली जो वैल्यू हमारी है स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली लेफ्ट इज ग्रेटर देन जीरो एंड यहाँ पे राइट को हमें लगाना है कि राइट शुड बी लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। सिंपल सिंपल। तो सेम वे में हम इसको करेंगे, अपने कोड को सेम इस तरीके से लिखते हैं, सेम वे में। Yeah. Okay. So here in the left, after the left, here should be the right. Right should be less than or equal to इस string, जो हमारे पास ये string आ रही है, इस string के length के पहले तक हमें इसे करना है। ठीक है, right? Sorry, LENGTH. Yeah, it should be okay. Fine. And here also LENGTH. Okay, so I'm sorry for this small mistakes here. Okay, I'll check in the end. Okay, fine. Here again, here it should not be the semicolon here. Here it should be the and operator here. Means हम तब तक इसको एक्सपेंड करें जब तक हम पूरा लेफ्ट एक्सपेंड ना कर लें, जब तक हम पूरा राइट एक्सपेंड ना कर लें। और साथ ही साथ हमें एक चीज और यहाँ पे चेक करनी रहेगी। वो चीज क्या है, हमें चेक करेंगे कि जो लेफ्ट कैरेक्टर है वो राइट कैरेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं। फॉर दिस एग्जांपल अगर मैं आपको शो करूं तो इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि सपोज अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए मीन्स हम अगर लेफ्ट को कर रहे हैं तो हम लेफ्ट यानी कि सेकंड फर्स्ट को अगर हम करेंगे तो सेकंड लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे, क्या इसके इक्वल है तभी ये सब स्ट्रिंग होगा। फिर इसको फर्स्ट वाले को हम लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे, क्या इसके इक्वल है तभी ये सब स्ट्रिंग होगा एंड तभी ये पैलिंड्रोम होगा, पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग। उसके लिए हमें सिंपली एक कंडीशन हमें यहाँ पे देनी होगी कि simply will come here, wait, yeah, here after this we need to give and operator here and as dot char at यहाँ पे हमें लेफ्ट वैल्यू देनी है एंड दैट शुड बी इक्वल टू as dot char at यहाँ पे हमें राइट वैल्यू देनी है हमें सिंपली। मीन्स जो लेफ्ट इंडेक्स हमारे पास है और राइट इंडेक्स हमारे पास है उसके जो कैरेक्टर हैं मैच होने चाहिए, तभी हमारे लिए वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा, तभी वो हमारे लिए पैलिंड्रोम होगा। देन अगर हमारे पास ये मिला तो फिर उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि हम लेफ्ट को माइनस करते करते इधर जाएंगे, लेफ्ट माइनस करेंगे एंड राइट प्लस प्लस करेंगे, राइट प्लस प्लस करेंगे। अब ये पिछले वाले एग्जांपल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आई विल शो यू अगेन। आई विल टेक एन एग्जांपल हियर। सिंपली इफ आई टेक हियर द एग्जांपल, इफ ए sorry yeah if we take a suppose I have the center here B। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट अगर सपोज हमारा लेफ्ट भी यहीं पे है राइट भी यहीं पे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आई और आई सिंपल ऑड लेंथ के लिए हमने आई सिंपल पास किया, मतलब लेफ्ट इज इक्वल्स टू हियर एंड राइट इज इक्वल्स टू हियर, सेम लेफ्ट एंड राइट दोनों है। अब लेफ्ट को हमें यहाँ पे इधर लेके जाना है, ट्रेवर्स करना है, राइट को हमें एक्सपेंड इधर करना है, राइट की तरफ एक्सपेंड करना है। अब लेफ्ट को हम तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक यहाँ पे जीरो ना जाए, तो हम लेफ्ट को माइनस करेंगे और राइट को हमें आगे की तरफ ले जाना है, इसलिए हमें राइट को प्लस प्लस करना है। सो डोंट बी कंफ्यूज, it is the reason here why we have taken here the left plus plus and right minus minus। okay so we have taken this। अगर अब अगर ये सारी चीजें एक्सपेंड हो गई, जैसे एक्सपेंड हो जाएगा पूरा एक्सपेंड हो जाएगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, एक्सपेंड होते हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आते ही हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न एस डॉट सब स्ट्रिंग, एक हमें सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। अब उस सब स्ट्रिंग में हमें लेफ्ट प्लस वन लेना है, लेफ्ट प्लस वन कॉमा राइट, एक सब स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर देनी है। अब ये सब स्ट्रिंग उठ के हमारे पास किस में आ जाएगी, ऑड पैलिंड्रोम में आ जाएगी। सिंपल। I hope you guys understand why we have taken this, why I have written the substring here and why we have taken here the left plus one right here। Okay, so this is the basic thing। Okay, so हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास ऑड पैलिंड्रोम में एक सबस्ट्रिंग उठ के आ गई। अब हम चेक करेंगे if ऑड पैलिंड्रोम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन लॉन्गेस्ट, जो हमारे पास ट्रैकर है उसका लेंथ हम चेक करेंगे, लॉन्गेस्ट लेंथ। देन व्हाट वी डू इज कि लॉन्गेस्ट में हम उठा के
ऑड पैलिंड्रोम की वैल्यू डाल देंगे, ऑड पैलिंड्रोम की वैल्यू उठा के हम डाल देंगे। सिंपल, सो सिंपल। सेम वे में हम इसको कॉपी करेंगे, सेम वे में इसको कॉपी करेंगे और हम इस बार इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए काम करेंगे। हियर इट शुड नॉट बी द ऑड, हियर इट शुड बी इवन, एंड हियर यू नीड a more attention here कि आपको यहाँ पे i+1 देना है, एंड आई एक्सप्लेन यू कि i+1 क्यों देना है। फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई भी डाउट यहाँ पे क्लियर डाउट यहाँ पे रह ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऑड लेंथ का हमारे पास सपोज a b a ये हमारे पास इवन लेंथ का हमारे पास सब स्ट्रिंग है। अब इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो हमारे पास आप देखोगे दो सेंटर बन रहे हैं, ये हमारे पास दो सेंटर बन रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट इधर है राइट इधर है, दो सेंटर बन रहे हैं। अब इस दो सेंटर को हमें पास करना पड़ेगा। वन सेंटर शुड बी द आई एंड अनदर सेंटर शुड बी द i+1, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर द i+1, so don't be confused here. Okay, so i+1 we have taken here as it is, and we'll pass here, and when we check here it will come here, then in the left it will be I and the right will be i+1, and accordingly ये elaborate होगा। आप इसको trace करोगे, आप definitely I dare you कि अगर आप इसे कर लिए, ट्रेस कर लिया विद पेन एंड पेपर, आपने पेन एंड पेपर लिया एग्जांपल या पेन एंड पेपर से अगर आपने इसे ट्रेस कर लिया, डेफिनेटली आई डेयर यू कि आप कभी भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे। ये एग्जांपल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओवरऑल हो सकता है कुछ नई चीजें सीखो जो आप मुझे बता सको, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। सो इवन है, इवन पैलिंड्रोम, एंड देन ऑड की जगह यहाँ पे क्या होगा, इवन पैलिंड्रोम होगा। सो इवन पैलिंड्रोम एंड लेंथ, एंड हियर फ्रॉम द इवन पैलिंड्रोम इट विल बी देयर, सॉरी, so here in the even palindrome here, ओके। सो अगेन यहाँ पे लॉन्गेस्ट में अब ओवरऑल जैसे ही ये लूप खत्म होगा है ना, वैसे हमारे पास इवन लॉन्गेस्ट में हमारे पास लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग आ जाएगा, एंड देन हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है, सिंपली रिटर्न एंड लॉन्गेस्ट, सिंपल लॉन्गेस्ट को हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है सिंपली, isn't it? Okay, let me check it is if everything is wrong or not. Yeah, I made a mistake here. I have not put in the semicolon here. So I'll just put here the semicolon again, run this code, and let's see if it is proper written or not. Yeah, case 1, case 2 is written here. Now I'll just submit the code. I'll just submit the code and I'll show you one thing here. Just submit the code here. Okay. So just submitting the code here, and we'll see here. The differences, the previous differences were the 5% only. Here the 64.98% we beaten the user. लेकिन प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब दे रहा था, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्यों है, आप यहाँ पे देखोगे सिंपली हमने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम ये चलेगा, एंड एन टाइम एक्सपैंड हमारे पास जो ये एन टाइम एक्सपेंड अराउंड सेंटर ये मेथड चलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज गिवन द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एंड देयर इज द प्रीवियस वन वाज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। सो ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है प्रीवियस सॉल्यूशन से। So maybe there are different solutions that are more optimized than this solution. So overall इसमें मैंने हर एक स्मॉल एस्पेक्ट को आपको डिस्कस करके अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप सो सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो प्लीज हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट राइट डाउन द कमेंट बॉक्स with your doubts. Okay, I'll explain you over there.